Good morning, diploma students. Uh, Today we are starting the fluid mechanics lecture online, and we have already covered the chapter 1, that is fundamentals of fluid flow. The second one is pressure measurement. We have already covered this. Now the third one is basic equation of fluid flow. Today we are starting the fourth unit, the fourth chapter, that is flow through orifices and mouthpieces. So in this chapter we discuss definition and types of orifice, vena contracta, coefficient of contraction, velocity, discharge and resistance, Torricelli's theorem, experiment determination of CC, CV and CD, head loss due to sudden enlargement, contraction and obstruction in a pipe, mouthpieces, time of emptying vessel by orifice, cylindrical, conical, flow from one vessel to another, large orifice, flow measurement by rotameter, volume flow meter. So let's start the chapter flow, the chapter 4th, that is flow through orifice and mouthpieces and flow measurement. So first of all we have to understand what is the orifice and mouthpieces. So let us see what is the orifice. Orifice होता क्या है? तो orifice is a small opening of any cross section such as circular, triangular, rectangular on the side or uh, at the bottom of the tank through which a fluid is flowing. जैसे किसी टैंक में या किसी बॉटल में किसी ट्रायंगुलर या सर्कुलर होल को हम क्रिएट करते हैं, अगर उस होल को हम देखें तो हम उसको orifice कहते हैं. सो दिस कैन बी orifice. Orifice कैन बी इन एनी शेप. जनरली हम जो यूज़ करते हैं सर्कुलर, ट्रायंगुलर एंड रेक्टेंगुलर शेप्स के यूज़ करते हैं. A mouthpiece is a short length of a pipe which is 2 to 3 times its diameter in the length, fitted in the tank or vessel containing the fluid. तो इसी तरह माउथ पीसेस को अगर हम देखें तो माउथ पीसेस एक्स्ट्रा ओपनिंग होती है किसी टैंक के एंट्रेंस पर, जहाँ से हम किसी दूसरे कंटेनर में या यूज़ के लिए फ्लूइड को सप्लाई कर सकते हैं. सो दिस इज़ दी orifice and the mouthpiece. Now the classification of orifice. orifice को अगर हम देखें, orifice क्या होता है, फिर से एक बार इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं. orifice can be a small opening in a tank. मान लेते हैं कोई एक कंटेनर है, एक छोटा सा, अगर इसके एग्जांपल हम समझना चाहें तो मान लेते हैं किसी एक छोटे से मटके को हम इसमें एक छोटा सा होल कर देते हैं. अगर उस होल को हम देखें तो दैट कैन बी कंसिडर एज orifice. तो ऐसे ही यहाँ पर orifices हम यूज़ करते हैं. इट कैन बी ट्रायंगुलर, सर्कुलर, एनी शेप. तो क्लासिफिकेशन अगर orifice का किया जाए तो orifice आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ साइज, शेप, नेचर ऑफ डिस्चार्ज एंड शेप ऑफ द अपस्ट्रीम एजेस. द फॉलोइंग आर द इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन. अगर हम orifice को देखें तो द orifice आर क्लासिफाइड एज स्मॉल orifice और लार्ज orifice डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द orifice. इसी तरह से orifice को देखें तो orifice कैन बी क्लासिफाइड एज सर्कुलर orifice, ट्रायंगुलर orifice एंड रेक्टेंगुलर. जैसे उनका शेप होता है उसके अकॉर्डिंग हम उसको क्लासीफाई कर सकते हैं. orifice को स्क्वायर orifice और भी अलग अलग टाइप के हम orifices को देख सकते हैं क्लासिफिकेशन के थ्रू. द orifice आर क्लासिफाइड एज शार्प एजेस orifice, जिसमें अगर हम देखें तो एजेस इनकी शार्प रहती है. मान लेते कोई सर्कुलर होल हमने किया हुआ है किसी कंटेनर में, लेकिन उसकी एजेस अगर शार्प है तो दैट कैन बी कंसिडर एज शार्प एज orifice. Now the second one is well mouthed orifice depending upon the shape of the upstream edge of the orifice. Now the next classification, the orifice are also classified on the free discharge orifice. अगर हम डिस्चार्ज को फ्रीली फ्लो होने दें तो दैट कैन बी कंसिडर एज ए फ्री डिस्चार्ज orifice. And the second one is down or submerged orifices depending upon the nature of the discharge. कई जगहों पे हम फ्री डिस्चार्ज करते हैं तो दैट कैन बी कंसिडर एज फ्री डिस्चार्ज orifice, और अगर इसको हम फोर्सफुली करें तो दैट कैन बी कंसिडर एज फोर्स्ड और ड्राउंड और सबमर्ज्ड orifice. तो ये था पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन. इसी तरह से द सबमर्ज्ड orifice आर फर्दर क्लासिफाइड एज फुल्ली सबमर्ज्ड orifice एंड पार्शली सबमर्ज्ड orifice. तो कई बार orifices किसी दूसरे टैंक को कनेक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं. तो अगर टैंक फुल्ली सबमर्ज्ड है तो दैट कैन बी कंसिडर एज फुल्ली सबमर्ज्ड orifice एंड पार्शली सबमर्ज्ड orifice. नाउ अगर किसी orifice को हम कंसिडर करें
तो कंसिडर अ टैंक फिटेड विद अ सर्कुलर ऑरिफिस इन वन ऑफ द साइड शोन इन फिगर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक ऑरिफिस हमने लिया हुआ है, ये कंटेनर है और इस कंटेनर पे हमने एक यहाँ पर ओपनिंग दी हुई है। दिस ओपनिंग कैन बी ऑफ एनी साइड शेप। यहाँ पर हमने इसको लिया हुआ है सर्कुलर शेप में। तो ये एक टैंक है जिसपे यहाँ तक फ्री सरफेस है, यहाँ तक मान लेते कोई लिक्विड फील्ड है यहाँ पर, और इस लिक्विड की हाइट h है। पॉइंट 1 और पॉइंट 2 हमने यहाँ पर कंसिडर किया है। पॉइंट 2 कैन बी व्हेन आई कंट्रैक्ट एरिया। तो इस ओपनिंग से यहाँ पर फ्री फ्लो हो रहा है, सो दिस कैन बी ए फ्री फ्लो orifice. तो consider a tank fitted with a circular orifice is one of its side as shown in figure. Let h be the height and the above the center of the orifice the liquid flowing through the। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर यही चीज़ें मैंने यहाँ पर इंग्लिश वर्ड्स में लिखी हुई है। मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि हिंदी में इसको कैसे हम लिख सकते हैं। तो माना हमने एक टैंक है और इसकी हाइट है। तो यहाँ पे हमने दो क्रॉस सेक्शन सेलेक्ट किए, क्रॉस सेक्शन 1 और क्रॉस सेक्शन 2। अगर हम क्रॉस सेक्शन 1 और क्रॉस सेक्शन 2 पर बर्नौलीज इक्वेशन लगाए तो मान लेते हैं यहाँ पर प्रेशर है P1, यहाँ पर है प्रेशर P2, यहाँ पर वेलोसिटी है V1, यहाँ पर वेलोसिटी है V2। तो अगर ये बर्नौलीज इक्वेशन हम यहाँ पर लगाते हैं तो बर्नौलीज इक्वेशन ये कहती है कि किसी भी चैनल में फ्लो ऑफ एनर्जी कैन बी कांस्टेंट। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल हेड, इन सब का कॉम्बिनेशन दोनों ही साइड्स पर पॉइंट 1 पर और पॉइंट 2 पर फिक्स्ड रहेगा। अगर ऐसा है यहाँ पर तो हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो Z1 और Z2 बराबर है क्योंकि हम इस लाइन में प्रेशर ले रहे हैं। मान लेते हैं यहाँ से अगर हम हेड को लें तो यहाँ पर Z1 और Z2 पोटेंशियल हेड है जो कि इक्वल है क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है एक्सेस। तो Z1 और Z2 बराबर है। तो इक्वेशन टर्म्स हो जाएगी इस फॉर्म में P1 बाई रो जी प्लस V1 स्क्वायर बाई 2g, ये इक्वल हो जाएगा P2 बाई रो जी प्लस V2 स्क्वायर बाई ट्वाइस जी के। अब अगर हम यहाँ पर देखें P1 बाई रो जी, ये है प्रेशर हेड और यहाँ पर प्रेशर हेड जो क्रिएट हो रहा है वो दैट इज़ H हमने ऑलरेडी मान रखा है। और P2 यहाँ पर अगर हम देखें वेना कॉन्टैक्ट एरिया पे तो प्रेशर जो हेड है वो ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। इसी के साथ साथ अगर हम यहाँ पर देखें तो V1 इज़ द वेलोसिटी, और अगर हम देखें तो कंटेनर में इस पॉइंट पर वेलोसिटी बिल्कुल निग्लिजिबल है, इट कैन बी कंसिडर एज ज़ीरो। तो अगर हम इस इक्वेशन में यहाँ पर सारी वैल्यूज़ को रखते हैं तो यहाँ पर हमने P1 बाई रो जी की जगह पर रख दिया H, V1 स्क्वायर बाई ट्वाइस जी क्योंकि V1 ज़ीरो है, निग्लिजिबल वेलोसिटी है, तो यहाँ पर हो जाएगा ये ज़ीरो, पूरा का पूरा काइनेटिक हेड ज़ीरो हो जाएगा। इसी तरह से P2 बाई रो जी अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पे कोई भी प्रेशर नहीं है क्योंकि एटमॉस्फेयर में यहाँ पर आ गया है लिक्विड। तो यहाँ पर जो प्रेशर हेड है वो ज़ीरो हो गया है, तो यहाँ पर हमने प्रेशर हेड को ज़ीरो कर दिया P2 बाई रो जी को, प्लस V2 स्क्वायर बाई ट्वाइस जी क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी है, काइनेटिक हेड होगा। तो ये इक्वेशन इस तरह से टर्म हो जाएगी। इसको अगर हम रीअरेंज करें तो V2 वेलोसिटी एट दी एंड वेना कॉन्टैक्ट एरिया पर यहाँ पर वेलोसिटी अगर हम निकालना चाहें तो इस फॉर्मूले से हम वेलोसिटी का निकाल सकते हैं। एंड दिस वेलोसिटी is a theoretical velocity, actual velocity will be less than this। तो ये पूरा का पूरा डेरिवेशन था फ्लो थ्रू द ऑरिफिस, फ्लो थ्रू एन ऑरिफिस। ऑरिफिस क्या होते हैं, माउथ पीसेस क्या होते हैं, तो ऑरिफिस का क्लासिफिकेशन हमने देखा, माउथ पीसेस क्या होते हैं वो भी मैंने आपको बताया। इसी के साथ साथ हमने ऑरिफिस के लिए वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए डेरिवेशन भी आज कंप्लीट किया। दिस इज़ सफिशिएंट फॉर टुडे। आज के लेक्चर में हमने देखा कि ऑरिफिस और माउथ पीसेस क्या है और इसके ऊपर एनर्जी इक्वेशन कैसे अप्लाई की जाती है और वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट की जाती है विद द हेल्प ऑफ ऑरिफिस। सो दिस इज ऑल अबाउट द ऑरिफिस। I hope you understand the lecture. Tomorrow we will discuss the next topic in the chapter 4. Thank you very much. Have a good day.